नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केवल रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, केवल रीडिंग। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा, लेकिन रीडिंग के दौरान कोई भी रुकावट नहीं होगी कि इसका मीनिंग ये है, ये टेंस है, कुछ भी नहीं। इससे क्या होगा, बहुत से लोग ट्रांसलेशन तो पसंद आता है बट एक्चुअल में रीड कैसे करना वो नहीं सीख पाते। तो आज आपकी परीक्षा भी होगी, जब मैं रीड करते जाऊंगा आप लोग उस सेंटेंस का मतलब निकालने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि एकदम 100% हूबहू मतलब निकले, आप समझ पा रहे कि नहीं, मैं जो सेंटेंस पढ़ूंगा उसका मीनिंग आप समझ पा रहे कि नहीं। समझ पा रहे हो यानी आप आगे बढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा इंग्लिश सीखते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और जो वर्ड समझ नहीं आएंगे इसका मीनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में वर्ड मीनिंग बताने वाला हूं। लेकिन रीडिंग के समय कोई रुकावट नहीं, सीधा सीधा रीड करते जाएंगे, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, थोड़ा रुकावट के साथ, थोड़ा ठहराव के साथ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए क्या पढ़ रहा हूं। बट पढ़ना कैसे वो भी आप सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द चेंज। चेंज यानी होता है बदलाव। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सोमनाथ लिव्ड इन बनारस। ही वॉज अ रॉयल ट्रेजरर। He was very honest and a kind man. He had a son named Kapilesh. He and his wife loved Kapilesh very much. His maidservant's son Jeevan was of the same age as Kapilesh. Hence, Kapilesh and Jeevan grew up together. Both were good friends. When Jeevan grew young, Somnath wanted him to work as his attendant, but Jeevan was very ambitious. He never desired to live the life of a servant. He wanted to live a life of luxury. One day, Somnath called him and said, "Son, I would like you to be the head of my servants and always be with me." Jeevan nodded his head in yes, but he never wanted to lead a life of a servant. Hence, he thought a lot in this regard and came to the conclusion that he can become rich only if he marries a rich man's daughter. Immediately, he planned out a scheme. He wrote a fake letter to Gopinath, a friend of Somnath, living in Lakshmanpur. From the letter's side, he wrote, "Dear Gopinath, I am sending this letter through my son Kapilesh. An astrologer has advised me and my wife to be away from my son for some time. Thus, for the goodness of Kapilesh, I am sending him to you. You get him married to your daughter and take care of them. We will not be able to attend the marriage too. Hence, make the ceremony simple. I will come to take them home myself later. Your friend Somnath." After writing the letter, Jeevan changed into Kapilesh's clothes and left home without informing anyone. He went to Gopinath's house and introduced him himself, एक साथ है, डेस है तो himself, as Somnath's son Kapilesh. He gave the letter to Gopinath and said, "My father has sent this for you." After reading the letter, Gopinath said, "I am glad that Somnath wants to change our friendship into a relationship. I will feel proud to have you
as a son-in-law. Thus, Gopinath came under Jivan's deception. He got his daughter Gauri married to him. After the marriage, he began to live in Gopinath's house. He took over Gopinath's business and began to command the servants in the house. Jivan kept a keen watch on everything. He made sure that even by mistake Gopinath does not come to know the truth about him. On the other hand, Somnath and his son Kapilesh were worried about Jivan. They were unable to understand why Jivan had left home without informing anybody. Somnath had sent many people in the search of Jivan. One day, a man came and informed him, "Sir, Jivan is leading a luxurious life in Lakshmanpur. He is living with Gopinath, your friend." After listening to everything, Somnath decided to go to his friend's house. He thought, after meeting him, I'll find out why did Jivan leave the house, and at the same time ask Gopinath for his daughter's hand for my son Kapilesh. Somnath sent a message to Gopinath informing him about his plan. Gopinath was very happy when he got the news, but Jivan was very upset because now his easy-going life was coming to an end. Everyone would know the truth. But he thought, I'll meet my Lord Somnath before anyone else does and tell him the truth and request him not to tell anybody about it. Then he thought about something, met Gopinath and said, "Respected father-in-law, in my house we do not differentiate between a servant and his master. Differentiate. So when my father comes, I will do all his work. I neither talk to him in a high tone nor do I sit beside him." Having listened to him, Gopinath was highly impressed by his son-in-law's respect towards his father. Next day, Jivan went to receive Somnath. He touched Somnath's feet and said, "Sir, I am pleased to see you after a long time. I am also glad to see you. But why did you leave Banaras and come here?" asked Somnath. "Sir, Gopinath ji is a very generous man." एक साथ generous man. "He not only got his daughter married with me, but also has a great respect for me. Hence, I would request you to not to tell him that I was once your servant." Jivan requested him, folding his hands together. "No, you don't worry. I will not say anything to Gopinath that may spoil your future spoil." Then they arrived at Gopinath's house. Somnath and Gopinath greeted each other, and got busy talking as they had met after a very long time. Gopinath said, "You have made me proud by accepting my daughter as your daughter-in-law. I know if only the astrologer had not prevented you, you and your wife would have come to attend the marriage. Kapilesh very often talks about you and his mother." Somnath was amazed to hear all this. He thought the fraud
had not only cheated me, but these people also. He has taken the name of Kapilesh, but I must forgive him. He must learn a lesson that good people never bring harm to others, no matter how much he cheats them. Then he thought, but at least once I must talk to Jeevan's wife. I hope he is not cheating her too. That night, when Gauri served him food, Somnath praised the food and then said, praised, Gauri, are you happy with your husband? Tell me the truth. I would like to help you. Respected father-in-law, he takes great care of me. But the only thing is that he never likes the food I cook. He always complains about the food. Gauri said. Then Somnath murmured something into Gauri's ear and said, daughter, now whenever he थोड़ा सा सेट करना पड़ता है criticizes the food cooked by you, just tell him these words. Next day, before taking leave of Gopinath, Somnath said, Gopinath, I can see that your son-in-law is helping you in business. Hence, I am leaving him here under your guidance. As you wish, it's my pleasure, replied Gopinath. Thereafter, Somnath left the place. Jeevan was now relieved. In the evening, when Gauri served food to Jeevan, he, as usual, criticized the food. Gauri immediately repeated the phrase taught by Somnath. When Somnath, who has been away from home, shows off, a traveler may come and spoil everything. Hence, eat your food, Jeevan. Jeevan was amazed to hear his real name. He thought that maybe Somnath had told the truth to Gauri. From that day onward, Jeevan never criticized the food made by Gauri. Not only this, he even stopped ordering the servants around. On the whole, he had become very moderate and gentle now. मेरे ख्याल से यहीं तक होगा. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स में आते हैं. अभी तक क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है? देखिए आराम से मैंने पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं. 13 मिनट में मैंने आराम से पूरे 4-5 पेज को मैंने आराम से पढ़ लिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, जो हमें लगता है कि हाँ भाई ये वर्ड्स हमने नहीं सुना है या सुना भी है तो इसका मीनिंग क्या होगा, उसे हम कुछ देख लेते हैं. ये आपसे ट्रेजरर यानी होता है खजांची, ऑनेस्ट, ईमानदार. इसके बाद और आगे देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीव अप, बड़ा हुआ, उसे ग्रीव अप बोलते हैं, टुगेदर, एक साथ. आगे और क्या है? अटेंडेंट यानी होता है सेवक, जैसे नौकर होता है ना उसे अटेंडेंट कहा जाता है. एम्बिशियस यानी क्या होता है? महत्वाकांक्षी, उसे एम्बिशियस कहते हैं. डिजायर्ड यानी इच्छा होना, है ना. लग्जरी आपसे पता है विलासितापूर्ण को लग्जरी कहा जाता है. आगे देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है. सर्वेंट्स, नौकर, ये सभी आपको पता है. नोडेड ही सेड, नोडेड यानी होता है हामी में सिर लेना, हाँ भाई मैं करूंगा, उसे नोडेड कहा जाता है. आगे देखते हैं, ये सभी क्लियर है ना. दिस रिगार्ड, तो इससे संबंधित उसे रिगार्ड कहा जाता है ना, संबंध कहा जाता है. कंक्लूजन यानी होता है निष्कर्ष, जो आखिरी का निचोड़ निष्कर्ष को कंक्लूजन कहा जाता है. आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर है. इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे. आगे और देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाए, हो सकता है कहीं पर आप रुके हो. इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, है ना. प्लान आउट मतलब होता है योजना बनाना. आगे देखते हैं और क्या है आपका, यहाँ तक क्लियर है. ये भी है, ये भी आप जानते हैं. एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिष वाले को एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है. और आगे इंपॉर्टेंट वर्ड देख रहा हूँ, गुडनेस यानी होती है उसकी भलाई को गुडनेस कहा जाता है. और देखते हैं टेक केयर, ध्यान रखना, देखभाल करना, टेक केयर कहा जाता है. सेरेमनी, है ना, यानी कि जो कार्यक्रम होता है समारोह को सेरेमनी कहा जाता है. और आगे
यहाँ तक क्लियर है। और देखते हैं, इन्फॉर्मिंग यानी होता है किसी को जानकारी देना, इंट्रोड्यूस्ड यानी होता है किसी को किसी से परिचय कराना, उसे इंट्रोड्यूस कहा जाता है। सेकंड में इंट्रोड्यूस्ड है, परिचय कराया, ऐसे। यहाँ तक क्लियर है, अभी कोई नहीं इंपॉर्टेंट वर्ड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं रिलेशनशिप, रिश्ते जो हम बोलते हैं उसे, संबंध को। प्राउड फील होना, गर्व महसूस होना। सन इन लॉ यानी होता है दामाद, यदि इन लॉ लग गया यानी ससुराल पक्ष से संबंधित। डॉटर इन लॉ यानी बहू, सन लॉ दामाद, ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साली, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए नया वर्ड मिला आपको, डिसेप्शन, जिसे हम कहते हैं छल करना, धोखा देना या कपट को हम डिसेप्शन कहा जाता है। क्लियर है। आगे फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, यहाँ पे क्लियर है, बिजनेस, व्यापार, है ना। कमांड यानी किसी को क्या बोलते हैं, कमांड द सर्वेंट्स इन द हाउस, मतलब आदेश देना शुरू कर दिया, बिगिन का बिगिन हो गया, कमांड आदेश देना किसी को। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्लियर है, आप सभी जानते हैं, ट्रूथ सच, ये तो आप जानते ही हैं। आगे आगे आगे, वरीड चिंतित होना, फिक्रमंद होना, अनेबल यानी असमर्थ होना, अंडरस्टैंड समझने में। आगे इन्फॉर्मिंग यानी वही जानकारी दिए बिना। और आगे बढ़ते हैं, इन सर्च यानी होता है खोज में, इन्फॉर्म यानी जानकारी दिया। आगे बढ़ते हैं, लग्जरियस यानी विलासितापूर्ण जीवन। यहाँ तक क्लियर है, ये पेज में इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आगे बढ़ते हैं, लिसनिंग आपसे पता, सुनकर, डिसाइडेड फैसला लिया। और क्या है, आगे देखते हैं ना, और देखते हैं इन्फॉर्मिंग, वही आपको जो बता चुका हूँ, किसी को जानकारी देना। अपसेट, वेरी अपसेट, बहुत उदास होना, उसे अपसेट कहा जाता है। इजी गोइंग यानी जो अच्छे तरीके से जीवन जा रहा है, बढ़िया तरीके से, उसे इजी गोइंग कहा जाता है। आगे एनीबडी, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है, बहुत इजी है इसलिए मैं ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड ही यहाँ पे लूंगा। रिस्पेक्टेड, सम्माननीय, आदरणीय को रिस्पेक्टेड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट यानी किसी के बीच में अंतर कर पाना, उसे डिफ्रेंशिएट बोलते हैं। अंतर कर पाना, दोनों जैसे दो लोगों के बीच में अंतर करना है, उसे डिफ्रेंशिएट कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, और क्या है, बिसाइड हिम, उसके बगल में, ये हो गया। इम्प्रेस्ड, हाईली इम्प्रेस्ड यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। आगे देखते हैं, यहाँ तक भी कुछ नहीं है। अब इधर देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड मिला है। ठीक है, फीट यानी पैर को होता है। प्लीज्ड, प्रसन्न होना, ये तो आप जानते हैं, बट बहुत से लोग नए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये नया वर्ड हो सकता है। आगे यहाँ तक भी ठीक है। जेनरस, उदार, दानी को जेनरस कहा जाता है, एक साथ है ना। अब आगे और देखते हैं, फोल्डिंग हिज हैंड, है ना, फोल्डिंग, हाथ जोड़कर उसे फोल्डिंग हैंड कहा जाता है। क्लियर है। स्पॉइल यानी होता है बर्बाद कर देना, उसे स्पॉइल कहा जाता है। अरे स्पॉइल कर दिया, पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। फिर आगे देखते हैं, ग्रीटेड, ग्रीटेड यानी अभिवादन कर रहा, नमस्कार, प्रणाम, उसे ग्रीट कहते हैं ना, ग्रीटेड, अभिनंदन उसे कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक है। और देखते हैं आगे कुछ है क्या, ये भी बता दिया। प्रिवेंटेड यानी होता है भाई रक्षा करना। आगे और क्या है, सॉरी, ये प्रिवेंटेड है ना, इसका मतलब होता है रोकना किसी चीज को, प्रतिबंध लगाना, रुकावट डालना, उसे प्रिवेंटेड कहा जाता है। रुकावट डालना, किसी चीज में रोक लगाना। आगे देखते हैं, ये पेज का हो गया, वो मेन वर्ब था। और आगे क्या है, अमेज्ड, ये सब तो जानते हैं, अमेज यानी क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, उसे अमेज का सेकंड अमेज्ड है। आगे फ्रॉड, वही धोखा को फ्रॉड कहा जाता है। चीटेड यानी भी धोखा होता है। और फॉरगिव, क्षमा करना, माफी, है ना, उसे होता है क्षमा करना। नेवर ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना। हार्म यानी होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, है ना, हार्म कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड देखता हूँ मैं, प्रेज्ड, प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसे प्रेज्ड कहा जाता है। आगे ग्रेट केयर ऑफ मी, ठीक है, बहुत अच्छा देखभाल करना, उसे ग्रेट केयर कहा जाता है। कंप्लेंट्स, शिकायतें, उसे कंप्लेंट कहा जाता है, प्लूरल है, कंप्लेंट्स कहते हैं। मरमट, कान में कुछ बुदबुदाना, खुशफुसाना, उसे मरमट कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कान में किसी के बुदबुदाना, कुछ चीज़ धीरे धीरे बोलना, उसे मरमट कहा जाता है। विस्पर जैसे होता है ना, वैसे विस्पर जैसे मरमट भी है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अभी मेरे ख्याल से लास्ट ही है पेज। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी किसी का, हम जैसे बोलते हैं ना, किसी का गलती निकालना, हिंदी में बोले तो आलोचना करना। क्रिटिसाइजेस लिखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, आलोचना करता है, ऐसे। निंदा करना, किसी का दोष निकालना, गलती निकालना, क्रिटिसाइज कहा जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, टेकिंग लीव यानी वहाँ चले जाना है, तो पता है आपको, थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अंडर योर गाइडेंस यानी आपके मार्गदर्शन के नीचे या अंदर, ऐसे यूज किया जाएगा। प्लेजर यानी होता है मेरा
सौभाग्य, इट्स माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है, ये कहा जाता है। उसके बाद देयर आफ्टर, उसके बाद, क्लियर है। और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, इमीडिएटली होता है तुरंत, ठीक। क्रिटिसाइज ये हो गया आपका। फिर देखिए फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है, उसके जो वाक्यांश को फ्रेज कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। शो ऑफ है ना, शोज ऑफ, जैसे बोलते हैं दिखावा करना, ऐसे यूज़ किया जाता है। और क्या है, अमेज, ये आपको बता दिया हूँ, बस ठीक है। इस स्टोरी में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने देखा, बहुत सारे हो सकते हैं, किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट हो, कुछ ना हो, कोई सबको जानता हो। वेरी, ये भी आपके लिए है। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट यानी बहुत नरम दिल हो जाना, है ना, उसे हम मॉडरेट कहा जाता है। वैसे तो मध्यम को भी मॉडरेट कहा जाता है, बट थोड़ा नरम हो जाना, थोड़ा सा शिथिल हो जाना, है ना, उसे हम नरम दिल को भी हम मॉडरेट कहते हैं। जेंटल यानी सभ्य, उसे जेंटल कहा जाता है। तो ये देखिए स्टोरी का हमने रीडिंग भी कर लिया आज 20 मिनट के अंदर, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग भी जान लिए। अब जो थोड़ा बहुत भी अभी मेरी वीडियो जो देखता हुआ आया है, उसे बहुत सारे जो सेंटेंस है उसका मतलब समझ आ गया होगा, स्टोरी भी समझ आ गई होगी। और जिसे इसका स्टोरी ट्रांसलेशन चाहिए वो भी कमेंट कर देंगे, तो कभी जब, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय चाहिए इसके लिए, तो फिर स्टोरी भी ट्रांसलेट कर देंगे। बट इस प्रकार की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को रीड करना नहीं आता है। इसे हम स्पीड से भी रीड कर सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप थोड़ी सी इसे स्पीड में भी क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। सोमनाथ lived in Banaras. He was a royal treasurer. He was very honest and a kind man. He had a son named Kapilesh. He and his wife loved Kapilesh very much. His maid servant son Jeevan was of the same age as Kapilesh. Hence Kapilesh and Jeevan grew up together. Both were good friends. ऐसे आप स्पीड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पीड पढ़ने की जरूरत ही क्या है भाई, हम पढ़ रहे हैं तो सामने वाले को भी समझ आए, हमें भी तो समझ आए। तो कोई जरूरी नहीं स्पीड पढ़ना, स्पीड पढ़ो, क्लियर पढ़ो तो काम का। स्पीड पढ़ो समझ ही नहीं आ रहा, कोई मतलब कोई नहीं है। तो सबसे मेन चीज है क्लियर पढ़ना। थोड़ा सा कॉमा है ना, इसका हमें ध्यान देना पड़ता है। फुल स्टॉप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा अर्धविराम है ना, थोड़ा कॉमा आ गया तो हम वहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा रुक जाए। जैसे हैंस, अब ऐसे नहीं बोलूंगा एज एस कपिलेश, हैंस कपिलेश नहीं, ए यहाँ पे एज एस कपिलेश, फुल स्टॉप, थोड़ा सा रुकेंगे। हैंस थोड़ा सा कम रुकेंगे। हैंस कपिलेश एंड जीवन, अब एंड है, कपिलेश एंड जीवन ग्रीव अप टुगेदर, थोड़ी देर रुक जाइए। बोथ वर गुड फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बोथ वर गुड फ्रेंड्स ऐसे नहीं पढ़ना है, बोथ वर गुड फ्रेंड्स ऐसे पढ़ा जाता है। इसके बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, शॉर्ट स्टोरी लाऊंगा कि एक्चुअल में हमें कहाँ कहाँ पे रुकना होता है, कहाँ पे थोड़ा सा हमें ज्यादा रुकना है, कहाँ कम, है ना, पंचुएशन जिसे कहा जाता है, उसकी भी वीडियो आने वाली। बस आप लोग चैनल पर बने रहे, सब चीज सिखाने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। फिर से आप लोग रीड करके देखिए क्या क्या रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। और जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको कठिन लगा हो, उसे तो मैंने बार बार डबल डबल रिपीट भी किया है, तो आप लोग अपने शब्दों में उसे लिख सकते हैं कि अच्छे से ये कहा जाता है। इसका मीनिंग भी मैंने लास्ट में बताया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जिसे स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है ना, तो वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मेंबर्स ओनली का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।